वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आयमल, फातिमा। Amal, you should have taken some rest, maybe. I'm good, Alhamdulillah, class. I'm good. Thank you so much for asking. So, class, we had discussed types of verbs. Today, we would be going through three different parts of speech. Okay, Negro, best of luck. कौन सा पेपर है आपका? Types of conjunctions, and then types of nouns, and then types of interjections. आज ये तीनों parts of speech हम cover करेंगे because they are easy and there is no need to consume much time on these parts of speech. ठीक है? अच्छा, इधर पाकिस्तान में उर्दू का पेपर होता है, बच्चे कहते हैं अल्लाह हाफिज। बच्चे उर्दू के पेपर को कंसिडर ही नहीं करते हैं, अमल। So Fatima, how did it go? Yes, आप हैं कि जी रो रही हैं आप? Okay, class. So the first part of speech for today is conjunction. ठीक है? It is pronounced is as conjunction. It is not pronounced as conjunction. Na sound is basically silent here. ठीक है? वालेकुम अस्सलाम. Now, conjunctions are basically also called as connectors or connecting words as well because they are used to join two different sentences, two different, ideas, two different nouns, adverbs, verbs, and adjectives as well. So, first of all, they are used in order to join two different clauses. They are used to join two different nouns, verbs, adjectives, and adverbs as well. ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लॉजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं होते, दे आल्सो करने मेनी डिफरेंट पर्पसेस एज वेल. वालेकुम अस्सलाम. सो क्लास, लेट मी नो के लाइक द सेंटेंसेस व्हिच आई एम सेइंग नाउ, वहां आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम जो बेसिकली कंजंक्शन यूज कर रहे हैं वो either we are using them in order to join clauses, nouns, verbs, adjectives or adverbs. ठीक है? So the first sentence is I woke up early in the morning and I went to school. And is used, but like it is used to join two clauses, two nouns, two verbs, two adjectives, or two adverbs. Yes, for Amal, it is basically joining two clauses. I went to school is first one, and sorry, I woke up early in the morning is first one, and I went to school. अब and की जो usage हो रही है class, it is basically joining your two clauses. The second one is nouns. Ahmed and Ali are best friends. देखिए, अगर ये सेंटेंस हो कि अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो मुझे ये बताएं कि ये कोई क्लॉजेस है इस सेंटेंस में? यस एमल, आई हैव सीन बट आई वाज बिजी सो दैट्स व्हाई आई डिडंट रिप्लाई. इसमें क्लॉजेस यूज हो रही हैं क्लास या नाउन्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं? अली और अहमद नाउन्स नहीं है? यस, दे आर नाउन्स. ठीक है? ठीक है. द नेक्स्ट वन इज, जी जी मैं आपको बताती हूँ आइमल. वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, you can sit or walk.
तो मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में हम वर्ब्स को ज्वाइन करें कि नहीं। लेट मी सेट द कैमरा क्लास। यू कैन सिट और वॉक। जी जी, मैं सेट कर रही हूँ कैमरा को। रोए नहीं आप लोग, रोना नहीं है, ठीक है। हाँ जी क्लास, यू कैन सिट और वॉक। अब सिट और वॉक आर दे nouns, verbs, adjectives और adverbs? Verbs, ठीक है। Sit and walk are verbs and or is basically combining them. Then we have adjectives. For example, Ali is uh, honest but poor. अब honest and poor are nouns, verbs, adjectives or adverbs? Yes, adjectives. अब और जो है ना वो आपके बेसिकली adjectives को combine कर रहे हैं. And the last one is adverbs. Adila is riding slowly and carefully. Yes, I'm a good example. So adverbs. तो क्लास आज से आप लोगों ने याद रखना है कि कंजंक्शंस बेसिकली आपके सिर्फ और सिर्फ दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं होते। ये आपके क्लॉजेस, नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को भी ज्वाइन करते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स एज वेल। Then we have different types of conjunctions. Conjunctions. The first one is coordinating conjunction. Plus, this is specifically used to join all the parts of speech and clauses that I have already discussed. इनको आपने याद कैसे करना है? There are specifically 7 different types of coordinating conjunction. और आप लोगों ने एक short form याद करनी है इनकी, which you people already know. I know that is man voice. जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली यूज किसके लिए हो रहे हैं। फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। ठीक है। यस आई विल। ठीक है। सो फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो, these are the only coordinating conjunctions that are used in order to join different types of clauses, different types of nouns, adverbs, verbs and adjectives. ये आप लोगों ने याद रख दें। ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब क्लास आई एम सेइंग सम सेंटेंसेस, लेट मी नो दैट बेसिकली what is coordinating conjunction in those sentences. The first sentence is she was tired but she finished her homework. She was tired but she finished her homework. Okay, so but is the correct answers. Class सारे participate करें please. You people are 18 in number and I am only receiving answers from 5 to 6 students. Let me know that you people are understanding. The second one is he studied hard so he passed the exam. Yes, so is the correct answer. Next one is he is poor yet he is honest. Yet, okay. The next one is I stayed home for it was raining. I stayed home
for it was raining. Okay, so Zia, I am happy that you have basically admitted your mistake of 3 days, disturbance of 3 days. ठीक है? It's good that you have admitted, but I have sent a lot of being a teacher. It's not, you know, sounds good, but I have sent a lot of curses on the student, and it was you. So अब आप दुआ करें कि वो जो कर्सेस थी ना वो एक्सेप्ट ना हो जाए. Because it was literally from my heart. हाँ जी मैं बोल ही नहीं रही थी. Yes, Amal, you're right. अच्छा जी class, next sentence is she can dance and she can also sing. And okay, okay. So class, this was about coordinating conjunction. The second one is subordinating. Plus subordinating conjunction, we call them as subordinating conjunction because they are used in order to फॉर्म में आता है. नहीं नहीं, पेपर में आपका जो है ना वो एक तो सेक्शन सी में कंजंक्शंस की यूसेज आती है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. ठीक है. प्लस बेसिकली इट इज यूज टू ज्वाइन योर सब ऑर्डिनेट क्लॉज. सब ऑर्डिनेट क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए. इट इज बेसिकली आर डिपेंडेंट क्लॉज. अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बेसिकली कोई इतनी ये लाइक दे आर मोर इन नंबर. तो आप लोगों ने कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है. दे आर यूज्ड इन ऑर्डर टू जॉइन आर डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि जी शी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी was not feeling well. अब इसमें क्लास वी आर यूजिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. वो तो हमें समझ आ गई कि बिकॉज जो है ना हम इसमें यूज करें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को. लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा सेंटेंस कभी आपके पेपर में आए जो ऐसा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो रहा हो जो आप पहली दफा सुन रहे हो. फिर आपको अगर नहीं समझ आ रही हो कि अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है क्लास कि उस सेंटेंसेस में डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है. क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमेशा एक डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती. अब देखिए क्लास, शी डिड नॉट कम टू स्कूल, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब आप लोग कहेंगे मैम तो फिर शी वॉज नॉट फीलिंग वेल भी तो एक कंप्लीट सेंटेंस है. बिल्कुल आप लोग सही कहेंगे. लेकिन जब आप लोग डिसाइड करेंगे ना कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉज आपके पास कौन सा है, तो आप लोगों ने इस चीज को भी साथ इंक्लूड करके डिसाइड करना है. ऐसा नहीं है कि आप उसको साइड पे रख दें और फिर डिसाइड करना स्टार्ट हो जाए. फिर आपके बाद आपने उसके बाद क्या करना है कि यू हैव टू ट्रांसलेट दीज क्लॉजेस इनटू उर्दू. फिर आपको सेंस समझ आएगी. फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आई, पूरा एक सेंटेंस है. लेकिन अगर आप सेकंड को ट्रांसलेट करें, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो फिर हमें तो नहीं पता कि वो आगे क्या हुआ या पीछे क्या हुआ था, वो किस वजह से अच्छा फील नहीं कर रही थी. मतलब कि दिस सेंटेंस इज नाउ योर डिपेंडेंट क्लॉज which is also called as a subordinate clause.
ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें जो हम हैज का वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज taking place with a dependent clause. That's why we are calling it as a subordinate conjunction. ठीक है, समझ आ गई? ओके अमल। अब आई एम सेइंग सम सेंटेंसेस, आप लोगों ने क्लास मुझे उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बताने, ठीक है? फिनिश योर वर्क बिफोर यू गो आउट। फिनिश योर वर्क बिफोर, जिया आपने क्लास लीव कर ली है? जिया इज हियर इन द क्लास? ओके ओके। Call me when you arrive. Call me when you arrive. When you arrive. सिर्फ आप लोगों ने subordinating conjunction बताने क्लास. The next one is she was happy though she was poor. She was happy. No, no. Though she was poor. ठीक है. अभी right at the moment just I'm trying to complete the syllabus class. अच्छा जी. Next one is since you are here, let us begin. Since you are here, let us begin. वो कैसी क्लास, ये देखिए ना। एक तो जब आप लोगों को कोई चीज आती है और बगैर सोचे आप लोग बताते हैं ना, फिर since you are here, let us start. Let us start तो आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है। चलें आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। सेंस का मतलब होता है जैसे, जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं पता। अब ये जो सेंस है, ये इट इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज हो रहा है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ यूज हो रहा है। लेट अस बिगन टू कंप्लीट या लेट अस स्टार्ट टू कंप्लीट सेंटेंस है क्लास। आपको टीचर कहते हैं जी लेट अस स्टार्ट, समझ आ जाती है आपको? यस, दो का मतलब यही है जवेरिया। समझ आ गई क्लास आप लोगों को? नेक्स्ट वन इज although he was tired he continued working. Although he was tired, ठीक है, ओके। Class, the last type of conjunction is correlative conjunction. ये भी बहुत इजी है, ठीक है। बेसिकली दे, ये क्यों, आप लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दे आर ऑलवेज देयर इन अ पेयर फॉर्म, और देयर आर लाइक 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक हो गया जी यार, ठीक है ठीक है ठीक है जी। दुआ करें सारे कि आज इंडिया जीत जाए जी। दुआ करें, आई मीन टू से पाकिस्तान जीत जाए, आई मीन टू से। करें करें, दुआएं करें, सारे बोलें आमीन। सारे बोलें सारे। गुड, ठीक है। थैंक यू क्लास। अच्छा जी, वैसे क्लास किस टाइम है, मुझे टाइम ही बता दें ताकि मैं वो क्लास जरा फिर आपको पता है जल्दी लें। यस यस, आपको याद, यस मुझे याद है मुझसे। अच्छा जी अनमता, ठीक है। आप मुझे याद कराना फिर 7 बजे। ठीक है क्लास, 7 बजे होगा जी असल खेल। अच्छा जी क्लास, आइदर और, इसको इधर भी आप लोग
प्रोनाउंस कर सकते हैं क्लास, नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, वेदर और। जहां क्लास आइडल यूज होगा वहां आपका और की भी यूसेज होगी। इस पेयर को हम कहेंगे जी कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, सर्फ एक्सेल के साथ होगी। नाइदर के साथ हम नॉर की यूसेज करेंगे, बोथ एंड, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। So now class I'm saying some sentences. Let me know कि are we using correlative conjunctions in those sentences or not? Yes or no में आप लोगों ने मुझे आंसर देना है। The first one is not only is he rich but also generous. Not only is he rich but also generous. Okay. Next sentence is either study hard or fail the exam. Either study, okay. अच्छा जी मुबशिर, मुबशिर को जी मुबशिर, जी मुबशिर साहब, प्रिंस चार्मिंग, व्हाई यू आर सेइंग कि इसमें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज नहीं करते? आइदर क्या सेंटेंस है क्लास में, तो सेंटेंस ही भूल गई। Either study hard or fail the exam, इसमें यूज हो रहा था, ठीक है, आइदर और की यूसेज हो रही थी। नेक्स्ट वन इज बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। ओहो, वो तो बड़ा डेंजरस प्लेयर है क्लास, बोथ एंड। ओके, नेक्स्ट वन इज वेदर यू लाइक इट और नॉट यू मस्ट गो। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू मस्ट गो। हाँ जी क्लास, समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं? हाँ या ना? Abiha, they do not join the dependent or independent clauses. They basically join the clauses of the same rank. अब rank का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि either you can sit or you can walk, अब लाइक sit और walk verbs है ना, मतलब ये तो नहीं है कि एक आपके पास हम ये कह रहे हैं कि either you are a person or you can walk। दोनों दोनों क्लॉजेस का बेसिकली रैंक इक्वल है, दोनों में हम वर्ब्स को मेंशन करें, आइदर यू कैन सिट और वॉक। क्या बात है जी फातिमा, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी मोहतरम जिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको चीजें क्लियर हो गई। इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, यस यस, उसमें था ना ऑल दो ही वॉज टायर्ड। अब ऑल दो हम स्टार्ट में ही कर रहे थे। अच्छा जी क्लास, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स में आप लोग मुझे पढ़ाएंगे, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही, इसका तो, इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए क्लास, टाइप्स ऑफ नाउन्स को क्या कहते हैं। अच्छा जी, द फर्स्ट वन, नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग और एन आइडिया। ठीक है, अब ये जो जितने भी टाइप्स होंगे क्लास, ये आई वुड बी आस्किंग यू द सेंटेंसेस, आप लोगों ने मुझे बताना है। तो फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, हरी अप। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन, स्टूडेंट ओके, गुड गर्ल ओके, बॉय ओके, आइसक्रीम वाह क्या बात है, चेयर टेबल ओके, गर्ल चेयर सिटी ओके, मैन ओके, कंट्री अली, अली इज अ गुड बॉय ओके बॉय, वुमेन कंट्री सिटी ओके गुड, आई एम बिजी नाउ, वाह क्या बात है, क्या बात है, आई एम बिजी, ओके।
क्या बात। अच्छा क्लास, अब ये नहीं करना कि आप लोग जल्दी से चैट जीपीटी से पूछें जी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है। ये किसने किया है? वेट, जिया। जिया आप आज क्या कर रहे हैं? ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज चेयर इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन इज अ प्रॉपर नाउन क्लास। Proper noun. Proper noun is a name of a proper person, particular person, place, or a thing basically. Pakistan, Babar Azam, ओके जवेरिया, पाकिस्तान, अबीहा, ओके जी, ठीक हो गया जी, मूसा, पाकिस्तान, ठीक हो गया जी, अमार, ठीक हो गया जी, रेहान, ठीक है। ओके क्लास, मुझे ये बताएं कि ये जो अली है हमारे वर्ड में तो डिफरेंट, मतलब हर लाइक हर दूसरे नेम पर्सन का नेम अली है, सो अली इज अ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? प्रॉपर, क्योंकि हर अली का जो फिजिक है, जो वेट है, जो हाइट है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, वो दूसरे अली से डिफरेंट होती हैं। ठीक है अब्दुल्ला, गुड गुड गुड, ठीक है, साथ एडिटिंग भी चल रही होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लास। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके पेपर में मस्ट आता है। It's a name of a feeling. We cannot see it, we cannot touch it, we can only feel it. For example, love, food smells good, kindness, feeling, ठीक है, sadness, ठीक है, gift, हाँ ठीक है, life, वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया यू ना, हैप्पीनेस, ओके जवेरिया, थोड़ा इज नॉट, लव, ठीक है, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमंस लाइफ। What is the abstract noun in this sentence? Forgiveness, okay. Life is also an abstract noun class. Childhood and life are the abstract nouns. ठीक है? You can only feel the life now. Okay, class, the next one is countable nouns. Countable nouns. The one which we can only count. For example, books, chairs, students, apples, laptops, okay, good, ठीक है। The next one is uncountable noun. Uncountable nouns are class the types of the nouns which we cannot count. ठीक है, for example, water, honey, sugar, salt, milk, rice, soil, mud, stars, hair, atoms. ठीक है, ये सारे they are the examples of uncountable nouns. Class, any question till now, please ask me. Molecules, okay, good. They are easy. मैम स्टार्स अनकाउंटेबल, ये स्टार्स अनकाउंटेबल है कि आप देखें, आप 2 to 3 स्टार्स को तो गिन सकते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस खुद भी किया होगा कि आपने कहा होगा कि चलिए जी अब ना आज स्टार्स को काउंट करते हैं। हम कहते हैं चलें अभी काउंट करते हैं, ठीक है, अक्सर हम अकेले होते हैं तो हम कहते हैं जी, इन समर्स मोस्टली। तो आप जब एक साइड से स्टार्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, दूसरे साइड जब आप पहुंचते हैं तो वो जो फर्स्ट साइड होती है वो आप लाइक सम हाउ आप नहीं काउंट कर सकते, आप भूल जाते हैं कि वो कितने टोटल स्टार्स थे। ठीक है, तो इसलिए दे आर अनकाउंटेबल। अनंता, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। आपके पेपर में सिर्फ फ्रेजेस आती हैं, क्लॉजेस नहीं आती, और अगर क्लॉजेस आएंगी भी तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज रेगुलर नाउन्स। हाँ जी, रेगुलर एंड इरेगुलर, आप बताएं। No, stars are not countable, they are uncountable.
नहीं नहीं, अनमता सिर्फ आपकी फ्रेजेस की टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज, इतना पेपर वो आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आते हैं। हाँ जी। क्लास रेगुलर एंड इररेगुलर, मुझे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसका आपको नहीं पता। देखिए, अगर आपका कोई भी नाउन है और उसको क्लास आप लोग प्लूरल फॉर्म में इसको चेंज कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुक का हो जाएगा बुक्स, ठीक है। चेयर का हो जाएगा चेयर्स, ठीक है। देन हाउस का हो जाएगा हाउसेस। तो इनके साथ जब इनको आप प्लूरल फॉर्म में क्लास कन्वर्ट करें, तो आप उसके साथ ऐड करें ई एस एस और आई ई एस को, ठीक है। स्टार्स आर नॉट काउंटेबल, ठीक है। गूगल इज आल्सो प्रोन टू मिस्टेक्स, इट इज आल्सो मेड बाय ह्यूमंस, वी हैव टू यूज आवर माइंड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इररेगुलर नाउन्स। यस, वेजिटेबल्स एंड जो फ्रूट्स है ना, दे आर समहाउ काउंटेबल। आप काउंट कर सकते हैं ना कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, जो लाइक आप काउंट कर सकते हैं, उसमें भी आपकी फिर क्लासिफिकेशन आती है। और जो नहीं काउंट कर सकते हैं, सो ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल पीस, ठीक है, बीन्स वगैरह। ओके ओके क्लास, द इररेगुलर नाउन्स वो तमाम नाउन्स होते हैं जिनको जब आप प्लूरल नाउन्स में कन्वर्ट करते हैं तो उनके साथ आप एस और ई एस की एडिशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल चाइल्ड से चिल्ड्रन, ठीक है। टूथ से टीथ, वमन से वेमन, गूज से गीस, माउस से माइस। इनको आप प्लूरल फॉर्म में जब लिख रहे हैं, सो यू डू नॉट ऐड एस आर ई एस विद देम, देयर होल फॉर्म्स आर बीइंग चेंज, देयर होल प्रोनाउंसिएशन इज बीइंग चेंज। फुट से फीट, ठीक है। सो ये आपके पास एग्जांपल हो गई क्लास रेगुलर और इररेगुलर नाउन्स की। गॉट इट? एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन, प्लीज डू आस्क मी। ओके ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। हाँ जी क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन। ओके, हर्ड ओस, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, यस। आर्मी क्लास, ठीक है। थे यस, बंच ऑफ ग्रेप्स, हर, ठीक है। क्लास कलेक्टिव नाउन, एज द नेम itself is depicting कि it is basically a combination of different types of nouns. Today we you would be saying कि जी हमारी टीम ने ना बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। इवन कि अगर आपकी टीम में दो या तीन प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, यू पीपल वुड बी सेइंग जी हमारी टीम जो है ना आज बहुत अच्छा जो है ना, इट हैज प्लेड वेरी वेल, इट इज परफॉर्म वेरी वेल। आप ये नहीं कहेंगे जी कि इस प्लेयर ने बेसिकली परफॉर्म किया। मतलब कि आप सारे प्लेयर्स को बेसिकली उसमें इंक्लूड करके उसको एक नेम दे रहे हैं, एंड दैट इज टीम। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल क्लास, आप कहते हैं जी हमारी क्लास में देयर आर 45 स्टूडेंट्स, ठीक है। यस यस अनंत, गुड, ठीक है। सो इसमें क्लास आप कहते हैं, क्लास आपसे टीचर कहते हैं जी आपकी क्लास में, आपकी क्लास आई हुई है। आपसे टीचर ये नहीं कहती कि जरा मुझे बताएं कि क्लास में कौन कौन आया हुआ है आज। आप बता दें कि मैम मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं या मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन बुके ऑफ फ्लावर्स, आपको कोई फ्लावर्स देता है, आप ये नहीं कहते कि जी आप उनके जो है ना वो गिनते हैं कि जी हाउ मेनी फ्लावर्स आई हैव गॉट, आप कहते हैं ही और शी हैज गिवन मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स। मतलब कि आप पूरे फ्लावर्स को उसमें कंबाइन करके जी कह रहे हैं कि दे आर द, इट इज द बुके ऑफ फ्लावर्स। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। गॉट इट? देन क्लास आपके पास नेक्स्ट है पोजेसिव नाउन।
पोजेसिव नाउन का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पोजेसिव बेसिकली नाउन शोज पोजेशन, और इसकी सबसे जो इजीएस्ट आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि these टाइप्स ऑफ नाउन्स we use an apostrophe to use the to show the possession. For example हम कहेंगे जी अब्दुल्ला बुक, ये जो अपॉस्ट्रॉफी और एस एन क्लासेस का मतलब होता है का, की या के, अब्दुल्ला की किताब। अब हम इसकी पोजेशन शो करें कि जी दिस हुज बुक इज दिस इज अब्दुल्लाज बुक, बजाय इसके कि हम ये बोलें कि दिस इज द बुक ऑफ अब्दुल्ला। हम सिंपली दो वर्ड्स में उसकी पोजेशन शो करते हैं, और इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉस्ट्रॉफी विद एस। अब आपके पेपर में इस तरह से सेंटेंसेस या वर्ड्स गिवन होंगे, उनको अंडरलाइन किया होगा, और अगर उसमें अपॉस्ट्रॉफी की यूसेज हो रही है, या सिंपल अगर ये कहोगे ना बुक ऑफ अब्दुल्ला, तो वो भी आपकी पोजेसिव नाउन की एग्जांपल होगी। समझ आ गई है? फॉर एग्जांपल अदीलास बुक, तो अदीला की किताब, ठीक है। एमर्स बैग, ओके गुड। एंड एग्जांपल्स फ्रॉम योर साइड क्लास, आई वुड बी शेयरिंग अनदर लिंक इन द ग्रुप टुडे, ठीक है, जल्दी से आप लोगों ने ज्वाइन करना है जी। कैट्स नहीं, क्राइम इज अ वर्ब, यमुना क्राइम जो है ना वो वर्ब है, उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए, दोनों नाउन्स होने चाहिए। मार्स खार, ओके गुड, ठीक है। हाँ जी क्लास, सबसे इजीएस्ट टाइप्स आ गई जी हमारे पास। द फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन नाउन, द सेकंड वन इज फेमिनिन नाउन, द थर्ड वन इज neuter noun, and the fourth one is common neuter noun. हाँ जी, any example of masculine noun? हरी अप, नेक्स्ट 2 मिनट्स में हमने इनको कवर करने हैं। मैस्कुलिन नाउन, गुड। सो बॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैस्कुलिन नाउन, ठीक है, या मैन। इन्हीं के हम फेमिनिन नाउन्स कर लेते हैं क्लास, गर्ल एंड वमन। अब न्यूटर, न्यूटर क्लास आपके वो तमाम नाउन्स होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता कि जी, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग इन उर्दू, उर्दू में तो आपकी तस्कीर तानीस हो जाती है, ठीक है। अब इंग्लिश में कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनका आपको जेंडर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल कार, टेबल, बुक। अब आप लोग कहेंगे नो मैम ये बुक तो हम मुजक्कर, आई एम नॉट टॉकिंग इन उर्दू स्पेसिफिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। आपको नहीं पता होता कि ये जी आपकी इसका कौन सा जेंडर है, तो इन तमाम जेंडर्स को हम बेसिकली कहते हैं न्यूटर नाउन्स। द लास्ट वन इज कॉमन न्यूटर। कॉमन न्यूटर में ऐसे नाउन्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर अब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एम्बेसडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं, पायलट, यस मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। सीईओ मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। ह्यूमन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। माफिया ठीक हो गया जी, माफिया की मुझे समझ नहीं आ रही कि माफिया कैसे ठीक हो गया। सो क्लास समझ आ गई? आई एम शेयरिंग अनदर लिंक इन द ग्रुप, प्लीज ज्वाइन इट, ठीक है, इन नो टाइम।